students, welcome to class 3. Today we will read unit 4, Prophet Hazrat Yunus alayhi salam. Today is Friday. Miss Salma had promised us last week to tell us about Prophet Hazrat Yunus alayhi salam. We all are very excited. After greeting us, she starts narrating her story. आज जुम्मा है। मिस सलमा ने गुज़श्ता हफ्ते में हज़रत यूनुस अलैहि सलाम के बारे में हमें बताने का वादा किया था। हम सब बहुत खुश हैं। हमें सलाम करने के बाद वो अपनी कहानी सुनाने लगी। Prophet Hazrat Yunus अलैहि सलाम was born in the city of Nineveh, which was on the eastern bank of the river Tigris in Iraq. While growing up, Prophet Hazrat Yunus अलैहि सलाम saw his pupil worshipping idols and disobeying Allah. हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इराक के शहर निन्वा में पैदा हुए, जो इराक में दरिया दजला के मशरकी किनारे पर था। बड़े होते हुए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को बुतों की पूजा करते हुए और अल्लाह की नाफरमानी करते हुए देखा। He was chosen by Allah as a messenger to guide the people of his city. Prophet Hazrat Yunus अलैहिस्सलाम believed in Allah, the greatest, as the true God, because he knew the idols were mere useless stone. उन्हें अल्लाह ने अपने शहर के लोगों की रहनुमाई के लिए एक रसूल के तौर पर मुंतखब किया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह पर यकीन रखते थे, जो सच्चे खुदा की तरह सबसे बड़ा है, क्योंकि वो जानते थे कि बुत महज बेकार पत्थर हैं। When Prophet Hazrat Yunus अलैहिस्सलाम started preaching to the people of his city, they did not listen to him. Instead, they kept on worshipping the idols and refused to accept Prophet Hazrat Yunus अलैहि सलाम invitation. जब हज़रत यूनुस अलैहि सलाम ने अपने शहर के लोगों को तबलीग शुरू की, तो उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। इसके बजाय वो बुतों की पूजा करते रहे और हज़रत यूनुस अलैहि सलाम की दावत को इनकार करते रहे। Prophet Hazrat Yunus alayhi salam warned that if they continued to disobey the orders of Allah, they would be punished. Gradually, Prophet Hazrat Yunus alayhi salam lost patience with the people. He left the town in anger without waiting for Allah's command. हज़रत यूनुस अलैहि सलाम ने इनको मुतनबा किया कि अगर वो अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते रहे तो उन्हें सज़ा दी जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लोगों के साथ सब्र से महरूम हो गए। वो अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर ही गुस्से में कस्बा छोड़ गए। What happened next? After he left the city, Sarah asked immediately. Miss Salma continues, when Prophet Hazrat Yunus अलैहि सलाम left, black clouds appeared in the sky. उनके शहर छोड़ने के बाद फिर क्या हुआ? सारा ने फौरन पूछा। पूछते ही मिस सलमा आगे चलती हैं। जब हज़रत यूनुस अलैहि सलाम रवाना हुए तो आसमान पर स्याह बादल नमूदार हुए। All the men and women became fearful, so they gathered and started repeating to Allah. They asked for forgiveness and promised to believe in the oneness of Allah. Allah Almighty accepted their sincere repentance and took the wrath away with His mercy. तमाम मर्द और ख़वातीन खौफज़दा हो गए तो वो जमा हो गए और अल्लाह से तौबा करने लगे। उन्होंने इस्तग़फ़ार किया और अल्लाह की वहदानियत मतलब अल्लाह के एक होने पर यकीन करने का वादा किया। अल्लाह ताला ने उनकी मुखलिस तौबा कबूल फरमाई और गज़ब को अपनी रहमत से दूर कर दिया। On the other hand, Prophet Hazrat Yunus अलैहि सलाम boarded a boat with some merchants. When the boat was in the middle of the sea, a horrible storm broke with wild wave raging. The merchants began to think of way to save themselves. दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहि सलाम कुछ ताजिरों के साथ एक कश्ती पर सवार हुए। कश्ती समंदर के बीच में थी।
जंगली लहरों के लरसते हुए एक खौफनाक तूफान टूट गया। ताजिरों ने अपने आप को बचाने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया। They suggested that one of them would have to jump off the boat to make it lighter. So they drew lots. It was decided that the one whose name is drawn will have to jump into the sea. तो कश्ती को हल्का करने के लिए उन्होंने मशवरा दिया कि किसी एक को कश्ती से छलांग लगानी होगी। उन्होंने काफ़ी बार पर्चियाँ डाली तो यह फैसला हो गया कि जिसका नाम निकलेगा वो पानी में छलांग मारेगा। In the first draw, Prophet Hazrat Yunus alayhi salam name appeared, but all the merchants knew him as a very noble and pious person. They did not want him to be thrown into the sea. पहली पर्ची में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम नमूदार हुआ, लेकिन सारे ताजिर उन्हें एक बहुत ही अच्छा और मुत्तकी शख्स के तौर से जानते थे। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें समंदर में फेंक दिया जाए। So they draw lots again, but according to Allah's will, Prophet Hazrat Yunus alayhi salam name appeared again. It was decided that Prophet Hazrat Yunus alayhi salam would have to jump into the sea. तो उन्होंने एक बार फिर पर्चियाँ डाली, लेकिन अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहि सलाम का नाम फिर से आया। फैसला हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहि सलाम को समंदर में कूदना होगा। As soon as he jumped into the sea, a huge whale swallowed him. It was dark inside the whale's stomach. After thinking about the past events, he realized that he should not have left the town without Allah's permission. जैसे ही वो समंदर में कूदे, एक बड़ी वेल ने उन्हें निगल लिया। वेल के पेट के अंदर अंधेरा था। माजी के औकात के बारे में वो सोचने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर उन्हें शहर को नहीं छोड़ना चाहिए था। Prophet Hazrat Yunus alayhi salam started praying to Allah by saying, "There is no God but you. Glory to be to you. I have done wrong." He kept repeating this prayer for many days. Almighty Allah answered Prophet Hazrat Yunus alayhi salam prayer. हज़रत यूनुस अलैहि सलाम ने ये कहते हुए अल्लाह से दुआ शुरू की कि आपके सिवा कोई खुदा नहीं है, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, मैंने गलत किया। वो बहुत दिन तक इस दुआ को दोहराते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूनुस अलैहि सलाम की दुआ का जवाब दिया। The whale threw him out onto a beach. He went back to his city. The people of his city were glad to see him back. Then they obeyed and worshipped Allah. वेल ने उन्हें साहिल पर फेंक दिया। वो वापस अपने शहर चले गए। उनके शहर के लोग उन्हें वापस देखकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने अल्लाह की इताअत और उनकी इबादत की। So this is the story about Prophet Hazrat Yunus alayhi salam. Our lesson is over now. We thanked Miss Salma for such an amazing story. तो ये हज़रत यूनुस अलैहि सलाम के मुतालिक कहानी है। हमारा सबक अब ख़त्म हो चुका है। हमने मिस सलमा को ऐसी हैरत अंगेज़ कहानी सुनाने पर शुक्रिया अदा किया। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।